قدیم زمانے کی بات ہے۔ ایک ایسی ریاست تھی جو دریاؤں، پہاڑوں اور گھنے جنگلوں سے گھری ہوئی تھی۔ شہر کا نقشہ کچھ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی شاعر نے رنگوں اور خوشبوؤں سے اسے آراستہ کیا ہو۔ گلیوں کے کنارے چھوٹی چھوٹی دکانیں، بازاروں میں پھولوں اور مصالحوں کی مہک اور فضا میں موسیقی جیسی ہوا، سب کچھ اس شہر کو اور بھی حسین بنا دیتا تھا۔ اس ریاست کی شان و شوکت کا مرکز قصر ممتاز تھا، ایک عظیم الشان محل جہاں بادشاہ اور اس کے وزراء ریاست کے اہم معاملات پر فیصلے کیا کرتے تھے۔ قصر کے دروازے پر موتیوں اور نفیس نقش و نگار کی ایسی سجاوٹ تھی کہ دیکھنے والا محسوس کرتا جیسے چاند کی روشنی نے ہمیشہ کے لیے اس پر اپنی چادر تان دی ہو۔ شہر والے بڑے احترام سے اس محل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے، یہ ریاست ہماری پہچان ہے اور یہ قصر ہماری شان۔ مگر اس شان و شوکت کے بیچ ایک حیران کن حقیقت بھی تھی۔ اس محل کا مالک بادشاہ شمشیر دل کا نہایت نرم اور بھلا انسان تھا، لیکن فہم و فراست میں کچھ کمزور۔ اس کی سادگی اور کبھی کبھی ناسمجھی پر مبنی باتیں شہر بھر میں مشہور تھیں۔ بادشاہ شمشیر کی صبح ہمیشہ ایک ہی انداز میں شروع ہوتی، پہلے دعا، پھر شہر کے راستوں کا جائزہ اور اس کے بعد بازاروں میں عوام سے ملاقات۔ وزراء ہمیشہ اس فکر میں رہتے کہ نہ جانے بادشاہ اگلا کون سا غیر معمولی فیصلہ کر بیٹھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ بازار میں ایک سادہ سی روٹی کی دکان کے سامنے رک کر روٹی کی قیمتوں کا تفصیل سے حساب لگا رہا تھا۔ ایک وزیر نے حیرت سے پوچھا، عالی جاہ، کیا روٹی کی قیمت میں کوئی خرابی ہے؟ بادشاہ شمشیر نے مسکرا کر جواب دیا، انسان کا دل اور روٹی دونوں ہی سچے ہونے چاہئیں۔ اگر روٹی مہنگی بھی ہو مگر خالص اور محنت سے بنی ہو تو شکایت کا کوئی حق نہیں بنتا۔ وزراء حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ اکثر سوچتے تھے کہ بادشاہ کی باتیں بظاہر عجیب ضرور ہیں، مگر اس کے دل میں اخلاص کی کمی کبھی نہیں۔ ایک دن شہر میں خبر پھیلی کہ ریاست کی قید میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو نہ صرف عقل مند ہے بلکہ چالاکی اور دانائی میں بھی بے مثال ہے۔ اس قیدی کا نام رفیق تھا اور اس پر سابق بادشاہ کے زمانے سے سزائے موت کا حکم نافذ تھا۔ شہر والوں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ رفیق اتنا ذہین ہے کہ اگر اسے آزاد کر دیا جائے تو وہ ریاست کے لیے بڑی خدمت انجام دے سکتا ہے۔ لیکن نئے بادشاہ شمشیر نے اپنے باپ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے جلد بازی میں ایک حیران کن حکم جاری کر دیا، اسے فوراً سزائے موت دی جائے۔ یہ خبر قصر اور شہر دونوں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ آخر ایک ایسا دانش مند شخص جس کی عقل مندی سب کو حیران کرتی ہے، اسے موت کے حوالے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جیل کے تمام قیدی رفیق سے واقف تھے۔ اس کی سمجھداری، حکمت اور غور و فکر کی عادت سب کو حیران کر دیتی تھی۔ مگر اس سب کے باوجود رفیق کے دل میں نہ نفرت تھی نہ غصہ، صرف ایک چھپی ہوئی ہمت اور ایمان کی روشنی تھی۔ ایک روز ایک قیدی اس کے قریب آیا اور افسردگی سے بولا، رفیق، کل کا دن آسان نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے حکم دے دیا ہے، 2 مضبوط گھوڑے تمہاری موت کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ رفیق نے مسکرا کر کہا، جس طرح آج اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہے، اگر میری عمر میں باقی لکھا ہے تو کل بھی بچ جاؤں گا۔ انسان تو صرف منصوبہ بناتا ہے، فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ قیدی حیران رہ گیا کہ رفیق کے چہرے حنظلہ پر نہ خوف تھا نہ پریشانی، صرف ایمان، حوصلہ اور عقل کی روشنی تھی۔ بادشاہ شمشیر نے فیصلہ کیا کہ رفیق کا انجام ایک نئے اور منفرد طریقے سے کیا جائے گا۔ 2 خوبصورت، طاقتور اور تیز رفتار گھوڑے لائے گئے۔ شہر کے لوگ، وزراء اور محل کے امیر لوگ سب تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ رفیق کو ایک کشادہ میدان میں لایا گیا۔ لوگوں کا شور، گھوڑوں کی ٹاپیں اور بادشاہ کا رعب سب مل کر ایک عجیب سا ماحول بنا رہے تھے۔ رفیق نے گھوڑوں کی آنکھوں، ان کی حرکات اور ان کی چال پر گہری نظر ڈالی۔ اس نے فوراً اپنی عقل و دانائی کو کام میں لاتے ہوئے ایک نیا منصوبہ بنا لیا۔ یہ منظر پورے شہر کے لیے ناقابل فراموش ثابت ہوا۔ ایک قیدی اپنی ہوش مندی اور مضبوط ایمان کے ذریعے شاہی دربار اور حکومت کو حیران کر رہا تھا۔ بادشاہ شمشیر کے چہرے پر حیرت اور تجسس دونوں جھلکنے لگے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، آخر ایک عام انسان جو قیدی ہے اتنا دانا اور ہوشیار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صرف انسانی ذہانت ہے یا کچھ اور بھی؟
اسی رات بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ رفیق کو عدالت میں دوبارہ بلایا جائے گا اور اسے مزید آزمائشیں دی جائیں گی تاکہ دیکھا جائے کہ وہ اپنی عقل و حکمت کے ذریعے سب کو کیا سبق دیتا ہے۔ قصر کے دربار میں تمام وزراء اور محافظ جمع تھے۔ بادشاہ شمشیر نے غصے اور تجسس کے ملے جلے انداز میں حکم دیا، رفیق کو سزائے موت دی جائے، 2 گھوڑے حاضر کیے جائیں اور اس کی آخری سزا یہیں دی جائے۔ یہ خبر پورے شہر اور میدان میں تیزی سے پھیل گئی۔ بازاروں، گلیوں اور چوراہوں پر لوگوں میں بے چینی اور بحث شروع ہو گئی۔ سب اس بات کے منتظر تھے کہ رفیق کی عقل اور قسمت کس موڑ پر لے جائے گی۔ قیدی ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، رفیق صرف عقل مند نہیں، بے حد ہوشیار بھی ہے، دیکھتے ہیں وہ اس مشکل وقت میں کیسے بچ پاتا ہے۔ رفیق کو قید سے نکال کر میدان کے عین وسط میں کھڑا کیا گیا۔ اس کے سامنے 2 مضبوط، خوبصورت اور چمکتے ہوئے گھوڑے لائے گئے۔ رفیق نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دونوں گھوڑوں کا بغور جائزہ لینا شروع کیا۔ پہلا گھوڑا بالکل سیدھا کھڑا، آنکھوں میں سکون اور حرکات میں ٹھہراؤ۔ دوسرا گھوڑا بے قابو، بار بار دم اور سر ہلانے میں بے چینی اور گھبراہٹ واضح۔ رفیق نے دل میں سوچا، میں صرف عقل نہیں، مشاہدے سے کام لوں گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو موت بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک قیدی کس حوصلے اور سکون کے ساتھ موت کے لمحے کا سامنا کر رہا ہے۔ بادشاہ شمشیر کے چہرے پر بھی حیرت اور تجسس چھلک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ شخص ایک عام قیدی ہو کر بھی مجھے حیران کر رہا ہے، آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ بادشاہ نے وزراء سے پوچھا، اسے کیسے پتا چلا کہ دونوں گھوڑوں میں اصل کون ہے اور غیر تربیت یافتہ کون؟ رفیق نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، بادشاہ سلامت، اصلی تربیت یافتہ گھوڑا پرسکون ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے، جبکہ غیر تربیت یافتہ گھوڑا بے قابو، پریشان اور بے چین حرکات کرتا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو فرق خود واضح ہو جاتا ہے۔ وزراء اور محافظ رفیق کیدنگ بین پر دنگ رہ گئے۔ سزائے موت کا وقت قریب آیا تو رفیق نے نہایت حکمت اور پھرتی سے گھوڑے کو سنبھالا۔ دوسرا بے قابو گھوڑا اپنا توازن کھو بیٹھا، مگر رفیق نے ہوشیاری اور چستی کے ساتھ صورتحال کو فوراً قابو میں کر لیا۔ شہر والوں، محافظوں اور وزیروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک قیدی نے اپنی عقل، مشاہدے اور مضبوط ایمان کے سہارے موت کے منع سے نکلنے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ رفیق نے مسکرا کر کہا، کل بھی اللہ نے بچایا اور آج بھی اسی نے حفاظت فرمائی ہے۔ بادشاہ شمشیر نے گہری سانس لی اور اعلان کیا، رفیق کی سزائے موت ختم کی جاتی ہے، مگر عمر قید کا حکم برقرار رہے گا۔ میدان میں شور مچ گیا، لوگ حیران، متاثر اور احترام سے بھر گئے۔ رفیق نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، الحمدللہ، اللہ جسے چاہے بچا لے اور جب چاہے راستہ بنا دے۔ وزیر اور شہر والے سمجھ گئے کہ رفیق صرف عقل کا نہیں بلکہ ایمان اور یقین کا بھی ایک روشن نمونہ ہے۔ رفیق جب دوبارہ قید خانے میں آیا تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی، کس طرح اپنی عقل اور ایمان کے سہارے نہ صرف اپنی جان بچائی جائے بلکہ دربار اور شہر میں سچائی کا نور بھی پھیلایا جائے۔ اس رات قید خانے میں ایک اور قیدی نے حیرت سے پوچھا، رفیق، تم میں اتنی عقلمندی کہاں سے آتی ہے؟ کیا یہ سب تمہاری اپنی عقل کا نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز بھی ہے؟ رفیق نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جو کچھ میں کرتا ہوں وہ اللہ کی رحمت اور اس نے مجھے دی ہوئی سمجھ کا نتیجہ ہے۔ انسان صرف سوچتا ہے لیکن فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ ایک دن بادشاہ شمشیر کو ایک پرانا پارچمنٹ ملا جس میں اس کے والد کی حقیقت اور اصل نسب کا اہم راز درج تھا۔ اس پر لکھا تھا، بادشاہ کا خاندان دراصل ایک مختلف نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد نے اپنی اصل پہچان چھپا کر سلطنت پر قبضہ کیا تھا۔ کچھ دشمن چاہتے تھے کہ اس اصل نسب کا ہر نشان مٹا دیا جائے۔ یہ پڑھ کر بادشاہ شمشیر حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا، میں اپنی اصل پہچان سے ناآشنا تھا اور یہ قیدی سب کچھ کیسے سمجھ گیا؟ رفیق کو احساس ہوا کہ بادشاہ کے دل میں بھی اضطراب اور تجسس ہے۔ اس نے نہایت نرمی سے اشارہ دیا، بادشاہ سلامت، اگر آپ اپنے اصل خاندان سے واقف ہوتے تو مجھے معمولی انعام پر نہیں ڈالتے۔ جو شخص اپنی پہچان سے لا علم ہو وہی ایسے انعامات دیتا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر غصہ اور حیرانی ایک ساتھ ابھر آئے۔ اس نے محسوس کیا کہ رفیق عام قیدی نہیں،
वो सब कुछ जानता है। दरबार के अंदर सब वुज़रा और मुहाफिज हैरत से रफीक को देख रहे हैं थे। बादशाह ने हुक्म दिया, सच सच बताओ, तुम्हारा असल खानदान कौन है? रफीक ने गहरी सांस ली और पूरा सच बयान किया। उसका नाना शाही खानदान का फर्द था। बादशाह के वालिद ने उसकी मां और उसे कैद में डलवाया और अब अल्लाह ने सच सामने लाने का वक्त मुकर्रर कर दिया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर हैरत और तजस्सुस नुमायां था। बादशाह शमशीर ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस नई सल्तनत का असल बादशाह हूं? रफीक ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, हर फैसला अल्लाह की मशीयत से होता है। जिस तरह आपने मुझे इनामात देकर अपने दिल का हाल जाहिर किया, वही आपकी असल पहचान का इशारा था। असल खानदान का शख्स अपने फैसलों से पहचाना जाता है, न कि ज़ाहिरी ताकत से। बादशाह ये सुनकर मजीद हैरान हो गया। उसे मालूम हुआ कि रफीक न सिर्फ ज़हीन है, बल्कि ईमान और सच्चाई का दरख्शां नमूना है। बादशाह ने गहरी सांस ली और बुलंद आवाज में कहा, रफीक में सिर्फ अक्ल नहीं बल्कि ईमान और सच्चाई का नूर है। ये कैदी नहीं, ये हमारे शाही खानदान की इमानत है। आज से उसकी इज्जत और हिरमत का ख्याल रखा जाए। दरबार में शूर बरपा हो गया। लोग रफीक की असल पहचान सुनकर हैरान रह गए। रफीक की हकीकत सामने आते ही पूरे शहर में चहमगोइयां फैल गईं। क्या रफीक वाकई शाही खानदान का फर्द है? अगर ऐसा है तो आगे क्या होने वाला है? बादशाह और सल्तनत की सियासत का क्या रख बदलेगा? रफीक ने अपनी जहानत, सब्र और ईमान की ताकत से वो मकाम हासिल किया जो शायद किस्मत भी कम लोगों को देती है। जब अल्लाह चाहे, एक आम कैदी को भी शाही खानदान का हिस्सा बना दे। अक्ल हो तो रास्ता मिल जाता है, होशियारी हो तो मुश्किल आसान हो जाती है, और ईमान हो तो अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। रफीक की असल पहचान सामने आने के बाद बादशाह शमशीर को अपनी बड़ी खुदा का एहसास हुआ। उसने गहरी सांस ली और कहा, रफीक, आज से तुम कैदी नहीं रहे, तुम हमारे असल शाही खानदान का हिस्सा हो। तुम्हारा हक और इज्जत आज तुम्हें लौटाई जाती है। रफीक ने मुस्कुराते हुए निहायत आजिज़ी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं तो सिर्फ अपनी अक्ल, सब्र और ईमान के सहारे यहां तक पहुंचा हूं। ये सब अल्लाह की मशीयत के बगैर मुमकिन नहीं था। दरबार और शहर के लोगों में खुशी और हैरत की लहर दौड़ गई। सबको एहसास हुआ कि एक आम कैदी भी अपनी ईमानदारी, जहानत और मजबूत ईमान से पूरी सल्तनत को सबक सिखा सकता है। जब रफीक को तख्त पर बैठाया गया तो बादशाह शमशीर ने सबके सामने ऐलान किया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सल्तनत और उसके लोगों की हिफाजत करो। तुम्हारी अक्ल, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा ईमान इस रियासत की हकीकी कुव्वत हैं। रफीक ने पुरैज़म लहजे में जवाब दिया, मैं अल्लाह के हुक्म, अपनी अक्ल और अपनी नीयत की पाकीज़गी से सल्तनत का हक अदा करूंगा। इंसान कोशिश करता है मगर फैसला अल्लाह फरमाता है। शहरियों ने खुशी के नारे लगाए। वो हैरान थे कि एक कैदी जो कभी मौत के दहाने पर था, आज इनका रहनुमा बन गया है। तख्त संभालते ही रफीक ने सल्तनत में नई इस्लाहात का आगाज किया। अमीर और गरीब के दरमियान फर्क कम करना, अदालतों में इंसाफ और सच्चाई को अव्वल दर्जा देना, वजीरों को अक्ल, हिकमत और ईमान के साथ फैसले करने की तलकीन, राया की फलाह को रियासत की पहली तरजीह करार देना। इसके दौरे हुकूमत में रियासत में अमन, खुशहाली और तरक्की के आसार नुमायां होने लगे। रफीक के शाही खानदान से होने की खबर के बावजूद कुछ वजीर और दरबारी उसे आजमाते रहे, मगर रफीक ने हर इम्तिहान को हिकमत और इस्तिकामत के साथ हल किया। नायाब जवाहिरात और शाही खजाने की पहचान, ऐली नस्ल के घोड़ों की खुसूसियात का इम्तिहान, सियासी चालों और साजिशों का पर्दाफाश करना, हर चीलिंग के बाद रफीक की इज्जत, हिकमत और क़ियादत में मजीद इजाफा हो गया। बादशाह शमशीर अब भी तख्त पर मौजूद था, मगर उसे समझ आ गई थी कि रियासत का असल वारिस और असल रहनुमा रफीक ही है। इसने अपना गुरूर, गुस्सा और ज़िद एक तरफ रख दी और ऐलान किया, रियासत के अहम फैसले रफीक की दानाई और ईमान की रोशनी में होंगे। मैं उसके साथ मिलकर सल्तनत के मामलात चलाऊंगा। दरबार और शहर में खुशी की नई लहर दौड़ गई। रफीक ने अपनी पहली सरकारी पॉलिसी में ये 3 उसूल मुकर्रर किए। 1, हर शहरी को इंसाफ और इज्जत दी जाएगी। 2, फैसले अक्ल, होशियारी और हिकमत की बुनियाद पर होंगे। 3, ईमान और सच्चाई हर फैसले का पहला उसूल होंगे। सल्तनत के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि वो एक ऐसे रहनुमा के ताबा हैं जो ताकत का नहीं
बल्कि जिम्मेदारी और खुदा खौफी का पुजारी है। रफीक ने खुद भी महसूस किया, क़ियादत ताकत का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी, अदल और ईमान का नाम है। जो इंसान अक्ल और ईमान का रास्ता अपनाए वो मुश्किल वक्त में भी दुरुस्त फैसला करता है। इसने अपनी दानाई को मजीद गहरा किया ताकि सल्तनत के हर फैसले में राया का फायदा हो। बादशाह शमशीर ने रफीक से ये अहम सबक सीखे, सादगी और नरमी हुक्मरानी की बुनियाद हैं। अक्ल और ईमान का तवाजुन बेहतरीन फैसले पैदा करता है। ताकत इंसान को नहीं, फैसले इंसान की असल पहचान बनाते हैं। शमशीर ने अपनी आदत ठीक की, गुस्सा कम किया और रफीक की मावनत में सल्तनत चलाने लगा। रफीक की क़ियादत में सल्तनत में अमन कायम हुआ, इंसाफ आम हुआ, हिकमत और ईमानदारी को कदर मिली, शहरियों का एतमाद बढ़ा। हर फर्द के दिल में उम्मीद पैदा हुई कि जब एक कैदी अपनी अक्ल और ईमान से सल्तनत चला सकता है तो हम भी अपनी जिंदगी के चैलेंज का सामना कर सकते हैं। आखिरी सबक, अल्लाह जब चाहे कैदी को भी शाही मर्तबा दे देता है। अक्ल और ईमान इंसान को मुश्किल वक्त में बचाते हैं। असल क़ियादत ताकत नहीं बल्कि जिम्मेदारी, अदल और हिकमत है। इंसान की कामयाबी हमेशा अल्लाह के फैसले से होती है। रफीक अब सिर्फ एक कैदी नहीं रहा था बल्कि पूरी सल्तनत का मुअज़्ज़िज़ और दाना रहनुमा बन चुका था। इसकी क़ियादत ताकत के जोर पर नहीं बल्कि अक्ल, होशियारी और मजबूत ईमान पर कायम थी। हर फैसला अल्लाह की रिज़ा और इंसाफ के मुताबिक होता। शहरियों और वजीरों का एतमाद हर दिन बढ़ता गया। सल्तनत का माहौल ईमानदारी, हिकमत और इंसाफ की बुनियाद पर परवान चढ़ने लगा। शहर और रियासत के लोग महसूस करते थे कि अब उनका रहनुमा सिर्फ एक हुक्म चलाने वाला बादशाह नहीं बल्कि एक सच्चा मुहाफिज, रहनुमा और खैर ख्वाह है। रफीक ने दरबार और वजीरों के लिए एक नया निज़ाम मुतारफ कराया। 1. हर फैसला मजबूत दलाइल और दानिशमंदी पर कायम हो। 2. ज़ाती मफाद और लालच को मुकम्मल तौर पर पसे-पश्त डाला जाए। 3. हर फैसले में अक्ल, होशियारी और ईमान का तवाजुन बरकरार रखा जाए। शुरुआत में कुछ लोग हचकचाए मगर आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आ गया कि ये कवानीन सल्तनत और उसके शहरियों के लिए फ़ायदेमंद हैं। रिफ्ता रिफ्ता रियासत में अमीर और गरीब दोनों को बराबर इंसाफ मिलने लगा। टैक्स और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम होने लगी। पूरे शहर में अमन, सुकून और खुशहाली का माहौल कायम हो गया। लोग हैरान थे और एक दूसरे से कहते, जो शख्स कभी मौत के करीब था आज वो हमारा रहनुमा और मुहाफिज है। ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत और रफीक की अक्ल, सब्र और ईमान का नतीजा है। रफीक ने तालीम को सल्तनत की बुनियाद करार दिया। मदरसे और स्कूल कायम किए गए। हर शहरी को अपनी अक्ल और सलाहियतों के इस्तेमाल का मौका मिला। माशरे में हिकमत, तहकीक और सीखने का माहौल परवान चढ़ा। रियासत में इल्म और दानिश का एक नया दौर शुरू हुआ। बादशाह शमशीर जो पहले जज्बात में बहकर फैसले करता था अब तब्दील हो चुका था। उसने रफीक से सीखा कि अक्ल और दानाई फैसलों को मजबूत बनाती है, कि ईमान और सच्चाई क़ियादत को पायदार बनाते हैं, कि ताकत नहीं बल्कि जिम्मेदारी और अदल एक रहनुमा की पहचान है। अब वो रफीक के साथ मिलकर रियासत के मामलात चलाने लगा और शहरियों की रहनुमाई करता रहा। रफीक की दाना क़ियादत में रियासत सियासी तौर पर मुस्तहकम हुई, मईशत मजबूत हुई, शहरियों का एतमाद बिहाल हुआ। हर चैलेंज को हिकमत और ईमान के साथ हल किया गया। वजीर और शहरी सब समझ गए कि रफीक की कामयाबी का राज सिर्फ होशियारी नहीं बल्कि ईमान, सच्चाई और साफ नीयत है। रफीक की पॉलिसियों ने आने वाली नस्लों को भी मुतासिर किया। हर हुक्मरान ने अक्ल, हिकमत और ईमान के तवाजुन को अपना उसूल बनाया। शहरियों में ईमानदारी, इंसाफ और सब्र की अक़दार परवान चढ़े। रियासत का कल्चर इल्म, दानिश और अखलाक पर कायम हो गया। पूरा शहर और रियासत अमन, खुशी और तरक्की का मरकज बन गए। इस पूरी दास्तान से अजीम सबक मिलते हैं। 1. अल्लाह जब चाहे एक कैदी को भी इज्जत और शाही मकाम अता कर देता है। 2. अक्ल और दानिश इंसान को हर मुश्किल से निकाल सकते हैं। 3. क़ियादत ताकत का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी, अदल और इंसाफ का नाम है। 4. ईमान और सच्चाई हर चैलेंज में इंसान का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। रियासत के लोगों ने सीखा कि इंसान अपनी अक्ल और ईमान के सहारे मुश्किलात का मुकाबला कर सकता है, मगर आखिरी फैसला हमेशा अल्लाह का होता है। रफीक ने अपनी क़ियादत में अगली नस्लों के लिए ईमान और हिकमत पर मबनी एक मजबूत मिसाल कायम की। रियासत को मुनसिफाना,
पायदार और खुशहाल बनाया, शहरियों और हुक्मरानों दोनों के लिए अखलाकी और अमली रहनुमाई का मियार बना दिया। शहरियों ने रफ़ीक को न सिर्फ अपना हुक्मरान बल्कि एक अक्लमंद रहनुमा और रोशन मिसाल के तौर पर कबूल किया। रफ़ीक की हुक्मरानी और शमशीर की रहनुमाई ने रियासत को नई रोशनी अता की थी, मगर हर रोशनी के साथ एक गहरा साया भी होता है। मशरिक़ की सरहद पर वाक़ई पुरानी दुश्मन रियासत बहारिस्तान ने अचानक जंग की धमकी दे दी। वज़ीर हर्ब दरबार में घबराए हुए लहजे में हाजिर हुआ। बादशाह मोहतरम, बहारिस्तान की फ़ौज सरहदों पर जमा हो रही है। ये एक नहायत सख्त चीलिंग है। रफ़ीक ने पुरस्कुन सांस ली और कहा, जंग करने से पहले अक्ल, हिकमत और गुफ्त व शनीद का दरवाज़ा बंद नहीं होता। हम पहले इनसे बात करेंगे। दरबार की फ़ज़ा में खामोशी गहरी हो गई। वज़रा सोचने लगे, ये शख्स वाकई मुख्तलिफ सोच रखता है। ये पहले कलम उठाता है और बाद में तलवार। बहारिस्तान की तरफ से एक कासिद आया, दुबला, लंबा और बाराब आदमी। उसके हाथ में एक सफ़ीद परचम और बादशाह का खत था। खत में लिखा था, हम मुद्दतों से तुम्हारी रियासत और तुम्हारी कमजोरी को देख रहे हैं। वक्त आ गया है कि तुम्हारी जमीन और खजाना हमारे कब्जे में आ जाए। अगर एक हिफ्ते में तस्लीम न हुए तो जंग का ऐलान कर दिया जाएगा। दरबार में सरगोशियां गूंजने लगीं। वजीर खजाना ने कपकपाती आवाज में कहा, बादशाह सलामत, ये लोग बहुत ताकतूर हैं, हमारे पास वक्त कम है। मगर रफ़ीक की मुस्कुराहट में इत्मीनान था। वो ताकत जिसे अल्लाह अता करे, दुनिया की कोई फौज उसे शिकस्त नहीं दे सकती। अक्ल से लड़ी गई जंग तलवार से लड़ी गई जंग से कहीं बेहतर होती है। रफ़ीक अंदर गया और खफिया मुशीरों और चंद संजीदा वजीरों के साथ मंसूबा बनाया। उसने कहा, 1, हम उनके जासूसों का मुकम्मल सुराग लगाएंगे। 2, हमारी फौज खामोशी से अपनी तैयारी मुकम्मल करेगी। 3, हम उन अफराद की निगरानी करेंगे जो उनको खबरें पहुंचाते हैं। 4, और फिर मुनासिब वक्त पर उनका पहला वार इन्हीं पर पलट देंगे। वजीर अक्ल ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह वक्त, आपकी मंसूबा बंदी किसी जर्नील की नहीं बल्कि किसी उस्ताद की लगती है। रफ़ीक ने जवाब दिया, आकिल वो नहीं जो बड़ी बात का इंतजार करे, बल्कि वो जो छोटी बात से बड़ी जंग जीत ले। जब बहारिस्तान की फौज सरहद के करीब कैंप लगा चुकी थी, रफ़ीक ने अपने खफिया सिपाहियों को भैंस बदलकर उनके कैंप में भेजा। इन खफिया सिपाहियों ने पता लगाया कि बहारिस्तान की फौज के 3 बड़े मसाइल हैं। पानी का वाहिद जरिया एक नहायत छोटी नदी राशन दूर दराज के इलाकों से आता था। उनका पूरा राब्ता एक ही मरकजी बुर्ज से होता था। रफ़ीक ने फौरन कहा, हम जंग नहीं करेंगे, हम उनके सहारे काट देंगे। रात की तारीकी में रफ़ीक की खुसूसी फौज ने उनका सिग्नल टावर तबाह कर दिया, राशन की गाड़ियों को रास्ते में रोक दिया और नदी का रख मोड़ दिया। सुबह हुई तो बहारिस्तान की फौज बौखला गई। न राबिता, न पानी, न राशन। उनके जनरल ने गुस्से से चीखा, ये कौन सा जादू है? उन्हें मालूम भी ना हुआ कि ये सब रफ़ीक के जवानों का मंसूबा था। अगली सुबह उनके कैंप में एक परचम लहराया हुआ मिला, जिस पर लिखा था, जिसे अल्लाह बचाना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिपाहियों के चेहरों पर मायूसी फैल चुकी थी। रफ़ीक की नफसियाती हिकमत अमली कारगर साबित हो रही थी। 3 दिन तक न राशन आया न पानी। सिपाही थकन और बेचैनी से घिर गए। बलाखिर जनरल ने पुष्पाई का ऐलान कर दिया। दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। वजीर हर्ब हैरत से बोला, बादशाह मोहतरम, आपने बगैर तलवार उठाए जंग जीत ली। रफ़ीक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब जंग अक्ल से जीती जाए तो खून बहाने की जरूरत नहीं रहती। वापसी पर शमशीर रफ़ीक को देखकर रो पड़ा। रफ़ीक ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं शमशीर? शमशीर ने लरजती आवाज में कहा, तुम वो शख्स थे जिसे मेरे बाप ने कैद में डाला था, और आज तुम वो शख्स हो जिसने मेरी रियासत को बचाया है। तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन तुमने कभी दिल में किना नहीं रखा। रफ़ीक ने उसके कुंधे पर हाथ रखा। नफरत दिल को कमजोर करती है, और कमजोर दिल कभी इंसाफ नहीं कर सकता। जब घोड़े शहर में दाखिल हुए तो लोगों ने फूलों की बारिश कर दी। बच्चे खुशी से नारे लगाने लगे, हमारा हिकमत वाला बादशाह आ गया, ये कैद से तख्त तक का सफर है। रफ़ीक के चेहरे पर आजिज़ी की रोशनी थी। उसके लिए ताज और तख्त की अहमियत कम थी, उसके लिए अल्लाह का मंसूबा ज्यादा अहम था। एक रात वो महल की छत पर तन्हा बैठा था। हल्की हवा चल रही थी, चांद पूरी आब व ताब से चमक रहा था।
वो सोचने लगा, ये दुनियावी तख्त एक इम्तिहान है। मुझे कुछ ऐसा करना है जो लोगों के दिलों पर नक्श हो जाए। सुबह उसने दरबार बुलाया और सब हैरान रह गए जब उसने ऐलान किया, आज से मैं बादशाह नहीं रहूंगा, बल्कि इस रियासत का मौल्लिम, इसका रहनुमा बनूंगा। दरबार में सकता तारी हो गया। वजीर अक्ल खड़ा हुआ, मगर बादशाह मोहतरम, आप ही तो हमारी ताकत हैं। रफीक ने नरमी से जवाब दिया, असल रहनुमा वो है जो वक्त आने पर जिम्मेदारी आगे बढ़ा दे। मैं तख्त किसी और को सौंप रहा हूं, लेकिन हिकमत और तरबियत मेरी जिम्मेदारी रहेगी। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। रफीक ने शमशीर के बेटे अनीस साला अरीब को बुलाया। ईमानदार, सादा और इल्म की जुस्तजू रखने वाला नौजवान। रफीक ने कहा, आज से तुम इस रियासत के बादशाह हो और मैं तुम्हारा उस्ताद। अरीब रो पड़ा, लेकिन मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालूंगा? रफीक मुस्कुराया, जिस तरह एक कैदी ने रियासत संभाल ली, वैसे ही तुम भी संभाल लोगे। बस अल्लाह पर भरोसा रखो। अगले साल रियासत एक नए सुनहरे दौर में दाखिल हो गई। अरीब की हुकूमत, रफीक की रहनुमाई, शमशीर का तजर्बा, राया का एतमाद। रफीक ने लाइब्रेरियां कायम की, हिकमत सिखाने वाले मदारिस खोले, फौज को नज्म और जब्त सिखाया, वजीरों को दियानत की तालीम दी। लोग कहते, यह रियासत अल्लाह की तरफ से अता करदा नामत है। एक शाम रफीक ने सब वजीरों और अमीरों को जमा किया और कहा, मेरी जिंदगी का खलासा याद रखो। 1, अल्लाह जिसे चाहे बुलंद कर देता है। 2, इंसाफ और हिकमत रियासत की बुनियाद हैं। 3, कमजोरी और क़ुव्वत इंसान की नहीं, अल्लाह की होती है। 4, कैद का दुरिया भी तख्त तक पहुंच सकता है अगर ईमान मजबूत हो। इसके हर लफ्ज ने दिलों पर नक्श बना दिया। वक्त गुजरता गया। रफीक बूढ़ा हो चुका था, मगर उसकी आंखों की रोशनी कायम थी। एक रात वो पुरस्कून नींद में दुनिया से रुखसत हो गया, बगैर दर्द और बगैर गम के। अजान से पहले रियासत में ऐलान हुआ, रफीक हिकमत का बादशाह इस दुनिया से रुखसत हो गया है। हर बच्चा, हर सिपाही, हर वजीर रोने लगा। उसकी कब्र पर लिखा गया, यहां वो शख्स सो रहा है जिसे कैद ने बादशाह बनाया और बादशाही ने मुअल्लिम बना दिया।